joining us in Priyanshi studio. Welcome. Taku Jain also joining with us. Is going to be Atish Bhambre. This is the good battle facing him informed batsman Ketan Patil. Short Thurman, backward point, short fine leg, deep cover, deep mid wicket, man at cow corner, deep square leg, and long on Prashant Matre is there. Long off. Atish Bhambre took his time now. Umpire signaling game on. Atish Bhambre. Turn from Asha Patil north stand. Facing him batsman Ketan Patil. Goes to Ketan. This time it's hard beautifully through the extra cover. One bounce. Cross the boundary for 4. What a great stroke and what a great start from Ketan Patil. Look at that. Lofted drive. One bounce, no chance through the extra cover. Great shot off the mark with a fantastic boundary. Ketan on 4. Vadunaugar 4 without loss. Now Prashant Matre at short Thurman and man at long off. Captain Kastug. Yuvak Patel is the 12th man. Atish Bhambre. Goes to Ketan. This time soft and drive. Straight to cover, but enough time batsman gets one. Mahesh is there. Very experienced campaigner Mahesh. But Ketan looking in good touch. He is on 5. Vadunaugar 5 without loss. Atish Bhambre. Goes to Yogesh. Firmly push. Gentle push in covers. Covers is a stump and with the stroke through for 1. Yogesh Patil off the mark with 1 and his score moves up to 6 for no wicket. Atish Bhambre, tall man, goes past us. Here he go. This time try to square cut, wide signal from umpire. Away from the off stump. 1-2 extra. And his score was up to 7 without loss. Ketan Patil on 5. Yogesh on 1. Floodlight is on now. This time slice that ball between two fielder. But well covered from Prashant Matre. Enough time batsman gets 2. Uppish stroke indeed. But just left of the gully. Well covered from Prashant Matre. And batsman settle for 2. 2 more to total now. 9 without loss. View of the Priyanshi studio. Left of me Asif Rangres and young dashing Jay Patil. Atish. Ball this time, lovely looking push. Covers this time, they go for 1, looking for a second. This is the good cricket. Build up the pressure on Mahesh and then taken an easy couple. This is the class cricket, class running between the wicket by these two. 2 more to total now. Ketan moves up to 9 and his score moves up to 11. Very good start from Vadunaugar.
This time a lovely looking on drive, but there is a fielder and Ketan Patil is gone. Nicely taken by Vaibhav at deep mid wicket, and finally that marks end of the first over. 11 for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 11 रन 1 विकेट. केतन पाटिल ने आउट होने से पहले 9 रन बनाए. इसके बाद दोस्तों देखना ना भूलिए, महापौर चषक में A1 मुकाबला भिवंडी सिटी ओपन से रईस बिल्डर एंड डेवलपर बनाम जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पारा, दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है. उसके बाद आप देखेंगे एक और क्लैश ऑफ टाइटंस ग्रामीण से जय हरी राजनौली बनाम गावदेवी अंजूर. उसके बाद एक और कड़ा मुकाबला सुभाष ठाकरे को आप एक्शन में देखेंगे, अष्टविनायक ठाकुर पारा और आयमश बलेरे बीसीसी बोरियोली का. ये दोनों मैच की विजेता टीम आखिर में टकराएंगी 12वें मुकाबले में. आज 12 मुकाबले हैं. प्रशांत मात्रे को मोर्चे पे लगाया गया है. बहुत अच्छी जेन्युइन इनकटर गेंदबाज रहे हैं प्रशांत मात्रे, और इसी ग्राउंड पे लेट गोपीनाथ मुंडे में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी 2015 में. प्रशांत मात्रे पहली गेंद बैट्समैन ने छोड़ दिया, सही फैसला. 1+1 2 रन स्कोर में आते हुए 13 पे पहुंचा स्कोर. आज ये महापौर चषक वाईट गेंदों के लिए भी याद रखा जाएगा. हो निश्चितच भरपूर गोलंदाजांनी भरपूर वाईट चेंडू देखील टाकलेले आहेत. एक गडी गमावलाय वडूनगर संघानं. केतन चांगली बॅटिंग करत होता, मात्र कुठेतरी संयम गमावला सरते शेवटी. देखना है कि टोटल वाइड्स कितने होते हैं. इस मर्तबा फ्लिक करते हुए पैरों के सामने प्रशांत पाटिल आउटफील्ड में फ्रंट फुट पे आकर 1 रन. देखिए इस ग्राउंड पर अगर फ्री हिट के रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो बालाजी कप 2016 जो दयानंद चोरगे का शो हुआ था उसमें 87 फ्री हिट एक टूर्नामेंट में बीमर गेंदों की भरमार रही थी. प्रशांत मात्रे इस मर्तबा स्विच हिट की कोशिश, गेंद बल्ले से नहीं टकराई, बाई का इशारा. पहिल्या षटकामध्ये केतनने दाखवून दिलं की अगदी सहज देखील या मैदानावर एका षटकामध्ये 10 ते 12 धावा तुम्ही बनवू शकता. जर तुमच्याकडे चांगलं टेक्निक असेल तर, प्लेसमेंट चांगलं पाहिजे, फटक्यामध्ये हलक्या हाताने खेळून देखील तुम्ही चांगले स्कोर 15 रन हुए. फुल टॉस गेंद स्विंग किया, फील्डर आए, आउट हो गए. और प्रशांत पाटिल के लिए महापौर चषक अब तक उतना अच्छा नहीं जा रहा है. हालांकि बहुत अच्छे टच में इस सीजन में वो चल रहे हैं. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कमजोर बॉल होता, मात्र पुरेपूर फायदा उचलता आला नाही. प्रॉपर एलिव्हेशन नव्हतं फटक्यामध्ये, आणि एक चांगला झेल डीप स्क्वेरिश मिड विकेटच्या दिशेनं. 15 रन पे गिरने वाला ये दूसरा विकेट है आई देवी वडूनगर का. फिर से देखते हैं, पीछे हटे थे, हालांकि बल्ले के ऊपर गेंद लगी थी. बड़ी विकेट हासिल की है प्रशांत मात्रे ने. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली और जय भोलेनाथ स्पोर्ट सरोली पाड़ा. उसके बाद बैक टू बैक 3 ग्रामीण के बड़े मैच. प्रशांत मात्रे राइट आर्म ओवर दी विकेट जाते हुए इस मर्तबा गेंद को आसमान में तान दिया है, दूर कहीं मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन. आता मात्र म्हणावं लागेल की जिद्दी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्याच ठिकाणी त्याच क्षेत्रामध्ये मागच्या बॉलवर फलंदाज बाद झाला होता, मात्र यावेळेस अचूक टायमिंग, शक्तीचा देखील जबरदस्त वापर, आणि चेंडूने केला हवाई सफर. डीप स्क्वेरिश मिड विकेटच्या डोक्यावरून बॉल सीमा पार. हा षटकार राहुलच्या बॅटमधून.
एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त वडू नौगर का 21 रनों पर 21। इस मर्तबा फिर से आसमान में तान दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, सर के ऊपर से निकल गई, एक और सिक्सर। अतिशय दमदार फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे राहुलच्या माध्यमातून। राहुल इज प्लेइंग ब्युटिफुल, वॉटरमॅनचा वापर करतोय, क्रॉस बॅटेड फटके मारतोय, मात्र जबरदस्त टायमिंग साधतोय आणि संपूर्ण शक्तीनिशी फटके खेळतोय। त्या ठिकाणी आतिशनं चांगला प्रयत्न केला, मात्र त्याला अजिबात संधी नव्हती, बॉल त्याच्या आवाक्याबाहेर। बॅक टू बॅक दूसरा षटकार। इसे कहते हैं 2 पे 2 ठोक डालना। 2 सिक्सर लगा चुके हैं और काफी अब अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं राहुल। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त योगेश हैं। थोड़ा दबाव में आ गए प्रशांत मात्रे, जिस तरह राहुल ने उनके सामने मोर्चा खोला है। अच्छी वापसी, फुलर लेन की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बीडवे। क्रीज मध्ये खूप डीप जाऊन फटके खेळण्याचा प्रयत्न होतोय। या आधीचे 2 चेंडू लेंथ चेंडू होते, त्यांच्यावर षटकार चढवले होते, मात्र हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू बीट केलं फलंदाजाला। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। वडूनगर संघाची स्थिती फारच चांगली दिसते, धावसंख्या 2 बाद 27। केतनने चांगली सुरुवात केली होती, असं वाटत होतं की मोठी इनिंग्स तो खेळेल, मात्र 9 धावा जोडल्यानंतर तो बाद झाला झेलचितच्या रूपात। त्यानंतर 1 डाऊन खेळण्यासाठी आला होता प्रशांतनं मात्र पूर्णपणे निराश केलंय, फक्त 1 धावेचं योगदान देऊ शकला। राहुल चांगली बॅटिंग करतोय, 2 षटकारांच्या साहाय्यानं 12 धावांचं योगदान दिलंय। योगेश सलामीवीर आहे, 2 चेंडूंचा सामना केलाय, 1 धावेचं योगदान त्याने आतापर्यंत दिलंय। अजूनही 3 षटकांचा खेळ या इनिंग्समध्ये व्हायचा आहे आणि निश्चितच 60 धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल इथनं वडूनगर संघाचा। ऑन फील्ड अंपायर अमर मातो और अंपायर हातिम कपासी, मरता क्या ना करता जारी रखा है। वहां पर आतिश बामड़े को स्वीप करने की कोशिश, ऊपरी सिरा लगा था लेकिन पहुंच नहीं पाए फील्डर। फटका खेळल्यानंतर स्वतःची बॅट पाहत असताना त्या ठिकाणी फलंदाज योगेश एक अनुभवी फलंदाज आहे, मात्र खूप लांबून त्याने हा स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यामुळेच टॉपेज लागला होता। परंतु सुदैव की त्या ठिकाणी कुठलाही फिल्डर नव्हता, चेंडू थोडा काळ हवेत देखील होता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये। धावसंख्या जाऊन पोहोचली 28 वर। आतिश भामरेचं हे दुसरं षटक। रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन और जय भोलेनाथ के कैप्टन टॉस के लिए आना है। इस मर्तबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, गुडलेन पे पड़ी थी, पीछे हटके पुल करना चाहते थे बैट्समैन, शरीर से टकराई, लेग स्लिप में गई, कोई रन नहीं। आतिश बामरे, क्या आज आपको लगता नहीं कि टॉस जीत के जो फील्डिंग करने का फैसला था वो कहीं थोड़ा सिंपली शॉक है, जब सूरज डूब रहा हो? इस मर्तबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में मिड विकेट के खिलाड़ी पहुंचे, वहां पर 1 रन बना। 29 रन पे पहुंचा स्कोर 29। अगला मुकाबला भिवंडी ओपन सिटी से आप देखने जा रहे हैं। वॉर ऑफ टाइटंस, इस मर्तबा स्विंगिंग यॉर्कर था, ड्राइव जरूर लगाना चाहते थे, बल्ली की जड़ से डिग आउट होती हुई गेंद, शॉर्ट कवर्स में 1 रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में आतिश बामरे। टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आलेला आहे वर्ल्ड संघाच्या माध्यमातून, निश्चितच थोडंसं आश्चर्य होतंय, परंतु त्यांच्याकडे चांगली फलंदाजी आहे आणि मोठी धावसंख्या देखील ते चेज करू शकतात, एवढी कॅपॅसिटी आहे त्यांच्या फलंदाजांमध्ये, त्या अनुषंगाने त्यांनी हा निर्णय घेतलाय। आतिश बामरे इस मर्तबा स्लॉक कर दिया गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। दूर गगन की छांव में फंटास्टिक टाइमिंग।
अगदी पॉवर पॅक शॉट होता. खोलवर टप्प्याचा बॉल उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर स्लॉक केलाय. व्हॉट अ ग्रेट हिट. उड़न खटोला शॉट, 6 रन. हा फलंदाज तर षटकारांमध्येच डील करताना दिसतोय. तिसरा षटकार राहुलच्या बॅटमधून आलाय. जबरदस्त इनिंग्स खेळतोय आपल्या टीमसाठी राहुल. अवघ्या 6 चेंडूंचा सामना केलाय, 19 धावांचं योगदान दिलंय. सिर्फ सिक्सर में डील कर रहे हैं राहुल. स्कोर उछलता हुआ 36 रनों पे पहुंचा है. 36. आतिश बामरे सामना करेंगे राहुल. नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त योगेश हैं. फुलटॉस गेंद, हवा हवाई स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे. ओ कैच छूटा, सपना टूटा और 2 रन भी बने. क्रिकेट फारच विचित्र खेळ आहे. बऱ्याचदा असं वाटतं आपल्याला, कारण चांगल्या चेंडूंवर षटकार येत असतात आणि असा कमजोर चेंडू आल्यानंतर बऱ्याचदा मिसटाईम स्ट्रोक्स देखील पाहायला मिळत असतात. यावेळी देखील तेच घडलं होतं. मात्र झेल सुटलाय. सहज सोपा झेल होता. खरं तर चांगला संघ आहे आणि चांगला फिल्डर देखील आहे झेलच्या खाली आतिश पाटील. परंतु वळ संघाकडून आणि आतिश कडून चूक घडली. आता महंगा पड़ सकता है राहुल का ये कैच. 3 ओवर की समाप्ति. बहुत अच्छी शुरुआत हम कहेंगे. टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 38 रन और 2 विकेट. 2 ओवर बचे हैं और आइए देखते हैं 2 ओवर में कहां तक रहेंगी ये रनों की सवारी. शाम बहुत ही खूबसूरत, लेकिन माइक्रोफोन पे वाकलन की मराठी की एक अलग अंदाज की खूबसूरत आवाज, जिन्होंने काफी रंग भरा है, ओमकार शेट्टे. धन्यवाद सिद्दीक भाबे आणि अजय घरात. लॉंग ऑफला फिल्डर आणि परतावा लागेल फलंदाजाला परत. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 3 विकेट जर आपण पाहिले तर पहिली विकेट गेली 11, सेकंड विकेट गेली 15, फॉलो विकेट तुम्ही पाहता आणि तिसरी विकेट जातीये 38 या आकड्यावरती. आणि बाद होणारा फलंदाज होता यावेळी योगेश. 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या. आई देवी वडून नवघर क्रिकेट संघासाठी. आणि मागच्या मॅच मध्ये क्रिकेटचा अद्भुत क्लास ज्या फलंदाजांना दाखवला, या टीमचा पाठीचा कणा मैदानाच्या आतमध्ये येतो. एक्सपिरियन्स होल्डर बॅट्समन दिनेश चौगुले ऑन ग्राउंड एंटर होत असताना आतिश पाटीलला मिळाली आहे सफलता. ओमकार, एक बात है कि जो खिलाड़ी ग्रामीण क्रिकेट में ऑलराउंडर रहते हैं वो बैट्समैन के तौर पे जाने जाते हैं सिटी में. अगदी बरोबर. आणि व्हाईट बॉलचा इशारा अंपाच्या माध्यमातून एक्स्ट्रा रन ऍड होती. परिस्थिती अतिशय चांगली आहे आयडीबी वडून नवघरसाठी, कारण आता संध्याकाळचं सत्र रन्स बनवणं चॅलेंज क्रीडा नगरीमध्ये तितकंसं जड जातं. मध्ये त्या धावा बनवल्या गेले फलंदाजांकडनं आणि त्यानंतर कमबॅक करण्याचा मानस आतिश पाटीलचा. आज एक मॅच मला आठवते, बल्लानी टिटवाळा विभागामध्ये तब्बल 3 ओव्हरमध्ये 43 रन खर्च केला टीम वळणं आणि नंतर याच आतिश पाटीलला निर्धाव षटक टाकला आणि त्या टुर्नामेंटचा चॅम्पियन झाला होता हा भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड संघ. पुन्हा एकदा बॉल बॉडी लाईन पॅडवरती जाऊन आदळतोय. रनआउटची संधी आहे आणि अंपायरचा इशारा. फलंदाज बाद. बॅट ग्राउंडिंग केली नाही, सगळ्यात मोठी चूक तिथे खेळाडूकडनं झाली आणि हा मोठा धक्का रनआउटच्या स्वरूपात लागतोय. सांघिक यश मिळतं भरत स्पोर्ट्स वर्ल्डला आणि फलंदाज बाद होतोय. रनआउट. आइए देखते हैं अमर महतो ने साइमन टफल की तरह तीसरे अंपायर की मदद नहीं ली थी. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साइमन टफल बहुत कम मर्तबा तीसरे अंपायर को कॉल करते थे. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. यस, कहीं ना कहीं बल्ला ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा. और अगर जब तीसरा अंपायर नहीं आता तो मैं आपको बताता चलूं कि पहला मिनी वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था उसमें जो डिसीजन अंपायर ने दिया था वो देखने के लायक था.
और तीसरे अंपायर का ऑन द लाइन डिसीजन 1996 में सनत जयसूर्या फाइनल में आउट हुए थे ऑन द लाइन. यष्टीरक्षक यष्टांच्या मागे अतिशय चांगली मेहनत करत असताना आणि काय कमबॅक केलं या ओव्हरमध्ये अतिश पाटीलनं. सुरुवातीची काही षटकं महागडी तर नक्कीच राहिली या मॅच मधली, मात्र त्यानंतर पुनरागमन गरजेचं होतं ते केलंय. दूर से खेलने की कोशिश की थी. लिप्टाम राउंड विकेट अगदी समोर होता. हा बॉल खेळलेत गॅप मध्ये आणि बॉल ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद वन माउस ओव्हर द रो. 4 धावेसाठी चौकार. फायनली जो दबाव बनवला होता आतिश पाटीलनं तो आता झुंकारून देत असताना रिप्लाय तुमच्या समोर. महापौर चषकचं जे प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे अगदी त्या तिथे सगळ्या आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीला मानवंदन आणि सलामी देणारा चौकाराला दिनेश चौगुले. अजून एक सुंदर फटका. मध्ये यावी फुलडा मिड विकेटला उसळता चेंडू आणि स्वतःला फ्लाय करून फील्ड करत असताना फिल्डर होते डीप मध्ये मिड विकेटला. ऍड होती एक सिंगल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतीये 4 षटकांचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर आफ्टर 4 ओव्हर 44 लॉस ऑफ 4 4-4-4 हे चित्र तुम्हाला फलकावरती पाहायला मिळत आहे. क्या बात है. 44 रन 4 ओवर और 4 विकेट. रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली की कैप्टन और जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा की कैप्टन, आप दोनों को तुरंत टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. जो भी कैप्टन नहीं रहेगा हो सकता है उस टीम को पेनलाइज किया जाए. चार षटकांचा खेळ झाला 44 धावा. आय काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन प्लीज कम ऑन द टॉस. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करायचं आहे. यानंतर सिटी क्रिकेटचा आनंद आपण घेणार आहोत. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल रईस डेव्हलपर्स आणि जय भोलेनाथ. शेवटचं षटक पहिलाच बॉल स्टँड अँड डिलिव्हर. बॉल जातोय लॉंग ऑनच्या वरतून सीमारेषा बाहेर. 6 धावा षटकार 50 अप. What a great stroke. What a great stroke played by Captain Dinesh Chogle. Look at that. Picks on the off volley and with the straight bat into the crowds as well. Beautiful shot. Great execution. Perfect and tremendous power. Great shot. अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा फायदा उचलला जातोय दिनेश चौगुलेकडनं. स्वागत केलं षटकारांना. बॉल शेवटच्या षटकामध्ये आलेत आणि डेट ओव्हर आणि आक्रमकतेचं दुसरं नाव आणि क्रिकेटच्या परिपक्वतेचं दुसरं नाव दिनेश चौगुले ऑन स्ट्राईक. इथे लाईन चांगली आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. षटकार त्यानंतर आला डॉट बॉल. 50 अप. 50 धावा पूर्ण झाल्यात. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. शरीरापासून भरपूर दूर. आणि दिनेश चौगुले बद्दल काही बोलायचं झालं तर एवढंच सांगेल, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. अनुभव त्याच्याकडे अगदी चांगला आहे आणि त्याचा फायदा उचलत असताना ऐदिबी वडून नवघर क्रिकेट संघ. गोलंदाज सज्ज. इथे कीपर बीट बॅट्समन बीट. चेंडू शॉट थर्ड मानला आणि अंपायरचा इशारा लेग बाईज. 1 रन ऍड होईल एक्स्ट्रा. अतिरिक्त धावेनं धावफलक पुढे सरकत आहे. 51 51. हमसे जुड़ते हुए इस वक्त माननीय श्री विकास पाटिल जी जो कि पोस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं. इस बीच एक गेंद ऑफिस स्टंप के बाहर रन के लिए निकल पड़े हैं और थ्रो हुआ बैकअप किया. माननीय श्री विकास पाटिल जी जो पोस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कुश्ती के भी वो कोच हैं, साथ ही साथ शरद भुईर साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ तेजस पाटिल. इन तीनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं महापौर चषक 2021 में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से.
53 धावा. 53 मध्ये आता ऍड किती होतील याकडे लक्ष आहे, कारण लॉंग ऑफला फिल्डर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, थ्रो चांगला मध्ये त्याच ठिकाणी 2 रन कंप्लीट. व्हॉट रनिंग बिटवीन द विकेट. अगदी चपळतेनं या 2 धावा पूर्ण केल्या. जो कॉल होता यस दिनेश चौगुलेचा, त्याला होकार देत असताना 2 धावा पूर्ण केल्या, त्याला साथ देत असताना बॅट्समन धीरजनं. टीमची टोटल 2 ने पुढे सरकतीये 55. पहिल्या सत्रातील अंतिम बॉल आणि यानंतर आपण वळणार आहोत प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉससाठी. रईस डेव्हलपर्स आणि जय भोलेनाथचे कॅप्टन तिथे सज्ज राहायचं आहे. यस, वॉकी टॉकी मैन विशाल पाटिल हमसे जुड़ते हुए प्रियांशी में. ओहो, ये उड़ाया और गेंद 6 रन के लिए. आणि स्ट्राईक का घेतली हे सांगत असताना दिनेश चौगुलेनं ठोकला हा षटकार आणि एक मोठी टोटल, एक मोठ्या संघासमोर, भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड समोर आता टार्गेट या मॅच मध्ये सेट झालाय 61. और इस वक्त हमसे जुड़ते हुए उद्योगपति माननीय श्री नीलेश पाटिल जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं महापौर चषक 2021 में. और जो लक्ष्य दिया है यहाँ पर सामने वो 63 रनों का है. 62 रन बना लिए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. आइए अगले टॉस की तरफ हम. क्लैश ऑफ टाइटंस भिवंडी सिटी ओपन में खेलने वाली टीमें रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली और उनके साथ है जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा. टॉस के लिए टॉस बॉक्स में हरीश पंड्या मौजूद हैं. तसेच आरपी सेट आपल्या सोबत जॉईन झालेत, त्यांचं देखील आपण करूया मनपूर्वक हार्दिक सुस्वागतम. लास्ट ऑफिशियल कॉल है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन और जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के कैप्टन. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है जो भी कैप्टन हाजिर नहीं होगा उसको पैनलाइज किया जाएगा, उस टीम को पैनलाइज किया जाएगा. रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन 63 रनों की चुनौती, 62 रन बने हैं और 63 की चुनौती, 61 रन बने सॉरी और 62 रनों की चुनौती रखी है. रईस बिल्डर एंड डेवलपर और जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा का अगला मैच. उसके बाद जय हरी राजनौली और गावदेवी अंजूर के बीच में 2-2 हाथ. बीसीसी पड़गा और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा 12वां मैच, 10वें और 11वें टीम की विजेता टीम. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो. और इससे पहले कि हम टॉस की तरफ बढ़े, आइए मैच की तरफ बढ़ते हैं. माझ्यासोबत मित्रांनो सन्माननीय विकास पाटील आहेत, पोस्ट डिपार्टमेंटमध्ये अधिकारी आहेत आणि कुस्ती महासंघचे जे आंतरराष्ट्रीय पंच सुद्धा आहेत. विकासजी, सर्वप्रथम आपलं हार्दिक स्वागत. खूप खूप धन्यवाद सर. आपणा सर्वांचा मी खूप खूप आभारी आहे की आज ह्या ठिकाणी मला तुमच्यासोबत हा सामना पाहायला मिळाला, तर मला खूप अगदी भरून आलेला आहे आणि खूप 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 मला आनंद झालेला आहे. विकासजी, अर्थात तुम्ही कुस्ती खेळावर खूप प्रेम करता आणि आज तुम्ही तिथे पंच सुद्धा झालेला, ते पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. परंतु लहानपणीच्या तुमच्यासुद्धा काही आठवणी क्रिकेटच्या असतील, टेनिस बॉलच्या, तर इथे आल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटतंय? म्हणजे एखादा IPL बघतोय किंवा टेस्ट मॅच, वन डे इंटरनॅशनल बघतोय, असा एक तुम्हाला वाटतंय का? अगदी बरोबर तुम्ही प्रश्न केला मला. खरं इथे ज्यावेळेस मी प्रवेश केला त्यावेळेस मला माझ्या लहानपणीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. मी देखील लहान होतो त्यावेळेस आई वडिलांची नजर चुकवून मी क्रिकेट खेळायला जायचो, तासन तास उन्हामध्ये खेळायचो. त्यामुळे बराचसा मी काळाही पडलो होतो. तर आई वडिलांकडून विशेषतः मला कुस्तीसाठी प्रोत्साहन होतं. तर क्रिकेटसाठी नव्हतं, परंतु मी क्रिकेट खेळत होतो. आणि तिथे मी जे काय प्रॅक्टिस केली त्या प्रॅक्टिसमध्ये असं झालं की ज्यावेळेस आमच्या कोण गावामध्ये, मी मूळचा कोण गावचा आहे, तर कोण गावामध्ये ज्यावेळेस एक मोठी स्पर्धा झाली होती, त्या स्पर्धेमध्ये मी माझ्या संघाचं प्रतिनिधित्व करून मॅन ऑफ द सिरीज मला मिळालं होतं एकनाथ सोलकर यांच्या हस्ते. आणि त्यावेळेस एकनाथ सोलकर साहेबांनी सत्कारामध्ये माझ्या म्हटलं होतं की हा चेहरा जर मला मुंबईमध्ये तुम्ही दिला तर मी याला ट्रेन करेन.
परंतु त्यावेळेसची परिस्थिती आणि त्यावेळेसची मिळणारी सुविधा, त्यामुळे मला ते शक्य झालं नाही. परंतु एकनाथ सोलकर साहेबांनी मला आश्वासन दिलं होतं. कुस्तीचं नुकसान कुस्तीचा फायदा झाला, क्रिकेटचं नुकसान झालं असं म्हणता येईल. नाही, असं नाही म्हणता येणार. कारण भिवंडी तालुक्याचं म्हणाल तर आदरणीय पाटील साहेबांचं जे योगदान ह्या क्रिकेटसाठी आहे, की आजची ही पिढी आणि येणाऱ्या पिढ्या, की चॅलेंज ग्राउंड म्हटलं किंवा भिवंडीतलं क्रिकेट म्हटलं तर पाटील साहेबांचं नाव येतं. तर ह्या पाटील साहेबांच्या हे जो सुरुवातीपासून जो त्याग आहे, ह्याला कशातच मोजता येऊ शकत नाही. कारण आणि मी ह्या मैदानामध्ये एंट्री केली तेव्हा असं मनात वाटलं होतं, पाटील सरांची भेट झाली तर खूप बरं होईल. कारण मी ह्या कॅमेऱ्यासमोर आहे आणि कोणाला खुश करावं म्हणून बोलतोय असं नाही आहे. तर खूप खूप मला बरं वाटलं इथे आल्यानंतर. पाटील साहेबांचं योगदान, त्यांनी अनेक क्रिकेटपटूंना नोकऱ्या देखील मिळवून दिलेल्या आहेत. तर इतर वेळेस आम्ही क्रिकेटबद्दल काही बोलत असू, परंतु क्रिकेटमुळे ह्या खेळाडूंना नोकऱ्या लागलेल्या आहेत. ह्या भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेत नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. तर मी त्यांना हॅट्स ऑफ, खूप चांगलं काम केलेलं आहे त्यांनी क्रिकेटसाठी. ह्या स्थानिक खेळाला जो टेनिस क्रिकेट जो आहे त्यासाठी त्यांनी जे योगदान केले त्याच्यासाठी मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद म्हणेन. धन्यवाद विकासजी पाटील. खरोखर तुम्ही खूप मोठी गोष्ट म्हणालात. विलास पाटीलची हीच खासियत आहे, सहज उपलब्ध, सदैव संपर्कात, प्रामाणिक सोबत, प्रत्येक संघर्षात. विलास आर. तर आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत. पुढील टॉस. एक गोष्ट इथे मी हेही बोलू इच्छितो की 2002-03चा जो राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धा होत्या, त्या कुस्ती स्पर्धा साहेबांनी घेतल्या होत्या आणि खूप यशस्वीपणे त्या स्पर्धा आजही राज्यामध्ये आमचे जे पंच इथे येऊन गेलेत ते या भिवंडी नगरीचा उल्लेख जरूर करतात की खूप चांगल्या कुस्ती स्पर्धा इथे घेतल्या होत्या. खूप खूप धन्यवाद. साहब की ये खासियत है, साहब जिस चीज में हाथ डाल दे सोना कर देते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया विकासजी पाटील आणि शरदजी भोईर. आपण टॉसकडे वळणार आहोत, मात्र तत्पूर्वी सामना सुरू होते. हरीश, रईस बिल्डर के कैप्टन आ चुके हैं. खेल की शुरुआत होती भी और वहाँ टॉस हो रहा है और मैच भी शुरू हो रहा है. तर सन्माननीय विकास पाटीलजी आणि शरद भोईरजी, पोस्ट विभागाचे अधिकारी, आपला स्वागत. पोस्टात तुम्ही कागदपत्र पोचवता, इथे क्रिकेटमध्ये आमचे फलंदाज चेंडूला सीमारेषा बाहेर पोचवतात. तर ही एक समानता आहे. तर सर, तुमच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे. मयूर पाटिल के मित्र रुचित पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत. बैक टू रुचित पटेल, बैक टू टॉस बॉक्स. येस, टॉस करू शकता तुम्ही. सरवलीपाडा संघाने नाणेफेक जिंकले. काय निर्णय घेतलाय? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. आणि संघ तोच ठेवलाय का काय बदल आहे? ग्रामीणचा संघ आमचा वेगळा आहे आणि ओपनचा संघ हा वेगळा आहे. तुम्ही तुमच्या क्षेत्ररक्षणाची तयारी करू शकता. ऑल द बेस्ट. राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आप पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो मेयर कप में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है. और हरी भरी घास है और आपका रंग भी टी शर्ट का हरा है. ऐसा लग रहा है कि घास के साथ आप मिलकर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, कोई लक्ष्य है आंखों के सामने? नहीं, सबको अच्छा खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे. तो जरूर आपका सपना पूरा हो, आपका भी सपना पूरा हो, लेकिन विजेता कोई भी एक होगा. ये मुकाबला थोड़े समय बाद आपके सामने आएगा. सरवलीपाड़ा वन द टॉस, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. राइस बिल्डर्स विल बैट फर्स्ट. बैक टू प्रियांशी स्टूडियो. थैंक यू. धन्यवाद हरीश जी. खेल की शुरुआत हो चुकी है. टारगेट बड़ा है, 62 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम को. जोरदार संघर्ष हो सकता है इन दो टीमों के बीच में. आई देवी वडुनगर टीम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, खासतौर पर राहुल ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए. स्कोर इस समय 5 रन बिना किसी नुकसान के. आतिश पाटिल के पास स्ट्राइक. उज्जवल की अगली गेंद.
फुल टॉस से ड्राइव कर दिया, बिल्कुल गैप में खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नहीं रोक पाए फील्डर, 4 रन। देखिए अजय करत रन ज्यादा चाहिए, ये आतिश पाटिल है। ये जब शॉट खेलते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते हैं। क्या शॉट खेला है, मूड को बना दिया है। आक्रामक सोच बल्लेबाजों की नजर आती हुई, दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को पता है कि उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मजबूत नींव रखनी होगी क्योंकि रनों की बहुत बड़ी इमारत हासिल करनी है। 62 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में। उज्ज्वल एक बार फिर से, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से टर्न किया है, कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ा था मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है, सिंगल डबल्स भी अच्छे से दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाज। एक चौका भी देखने को मिला है। स्कोर इस समय 10 रन बिना किसी नुकसान के। 12 के ऊपर का आस्किंग रेट है, उस पर जरूर नजर है बल्लेबाजों की। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे यहाँ पर, हालांकि उनके सामने लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। और अंडर फ्लडलाइट्स इस तरह के लक्ष्य छूना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है वर्ल्ड टीम के पास। इस बार प्रतीक बोयर ने लॉफ्ट कर दिया है, अच्छा प्लेसमेंट, कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे लेकिन फील्डिंग लाजवाब, सिर्फ 1 रन। तो सिंगल आखिरी गेंद पर पहला ओवर खत्म होता हुआ भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। अजय का बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। तमाम टीमें इस वक्त जो देख भी रही होंगी, ये चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर की तरफ से कर रहा हूँ। और ये भिवंडी महानगर पालिका के कोविड गाइडलाइंस और महाराष्ट्र सरकार की कोविड गाइडलाइंस की वजह से महापौर चषक के जो मैचेस है उसमें हमने चेंजेस किए। आप तमाम टीमों को सहयोग करना है। कल 13 मैचेस हैं और जो सिटी क्रिकेट यानी भिवंडी ओपन सिटी और सिटी इमर्जिंग के जो मैचेस रहेंगे वो 5-5 ओवर के रहेंगे कल से, और जो ग्रामीण के मैचेस रहेंगे और 40 प्लस के वो 4-4 ओवर के रहेंगे, क्योंकि ये मजबूरी है हमें महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका के जो गाइडलाइंस है कोविड के उनका पालन करना है। कल 13 मैचेस खिलाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से हमारा शेड्यूल कल शुरू होगा। थोड़ा हमने चेंजेस किए हैं। तमाम टीमें हम अपेक्षा करते हैं चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कि आप हमें फुल सपोर्ट करेंगे। कल का प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अगले ओवर की तरफ। जी हाँ, और खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, चाहे फिर आप कोपचा में क्यों ना बैठे। लॉफ्टेड शॉट, ओ बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन कैच ड्रॉप। भरसक प्रयास किया गया था वहां पर, केतन मेरे ख्याल से फील्डर है वहां पर। अजय रणनीति को बदल दिया गया और प्रतीक भुईर को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है। ये देखिए पैरों में गेंद थी इसलिए ताकत नहीं मिली थी। कल पहला मुकाबला ठीक सिटी इमर्जिंग जूनियर से 10 बजे रहमानिया स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच रहेगा। धीरज दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए, धीरज ने दोपहर के मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, बहुत धारदार उनकी गेंदबाजी रही थी, अच्छी खासी रफ्तार निकाल रहे थे और बार बार बल्लेबाजों को बीट कर रहे थे। 2 विकेट्स भी चटकाए थे उन्होंने, टीम की जीत में बड़ी भूमिका अदा की थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील हो रही है वहां पर स्टंप्स के पीछे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। अच्छी गेंद, काफी नीची भी गेंद रही थी। कल दूसरा मुकाबला ग्रामीण से 11 बजे, हालांकि 10:30 बजे रिपोर्ट करना है टीम को, साइंस स्पोर्ट खारबांव और विलास स्पोर्ट रानाल के बीच में। फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। गेंद में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, टप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ। थँक यू प्रियांशी स्टुडिओ। सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासननी लागू केलेल्या कोविड गाईडलाईन्स प्रमाणे जे प्रेक्षक मैदानामध्ये बसलेत उभे आहेत त्यांना मास्क आवश्यक आहे। प्लीज आदेशाचं पालन करा। विदाउट मास्क आतमध्ये येऊ नका। आत आले आहात तर मास्क घाला आणि स्वतःला सेफ ठेवा। मास्क कंपल्सरी असणार आहे।
अगदी उद्यापासून विदाऊट मास्क एंट्री सुद्धा मिळणार नाहीये, परंतु आज तुम्ही आलेले आहात, प्लीज मास्क असेल, मास्क नसेल तर रुमाल बांधा, परंतु तातडीने हे तुम्हाला करणं गरजेचं आहे, अशी नम्र विनंती चॅलेंज स्पोर्ट्स कडून करण्यात येत आहे. धन्यवाद. बिल्कुल यही कारण है कि महापौर चषक का जो शेड्यूल है उसको काफ़ी बदला गया है. जो सिटी इमर्जिंग और भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट के मैचेस है वो 5-5 ओवर के रहेंगे, ग्रामीण और 40+ के 4-4 के. कल तीसरा मुकाबला सुमित इंटरप्राइजेस वेद 11 धानियू के बीच में रहेगा ग्रामीण से. कल चौथा मुकाबला नंद किशोर स्पोर्ट खारबांव सुनील स्पोर्ट वडावली ग्रामीण से रहेगा. कल पांचवा मुकाबला प्रथम कुमार चामिंद्रा और ललित स्पोर्ट लाभ के बीच ग्रामीण से. कल छठा मुकाबला मैच ऑफ इवनिंग सोना देवी टेमगढ़ और एसपी दापोडे, सबसे बड़ा मुकाबला भिवंडी ओपन. इस बार गेंद हवा में है, एक और कैच बन सकता है. जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट का पतन होता हुआ. इससे पहली वाली गेंद पर बैट्समैन आउट हुए थे प्रतीक, और अब उनके पार्टनर आतिश पाटिल भी पेविलियन में लौटते हुए. 13/2. कल सातवां मुकाबला कृष्णा इंटरप्राइजेस वर्सेस श्री अष्टविनायक 40+ क्रिकेट से रहेगा. कल आठवां मुकाबला वीएन स्पोर्ट बनाम जय गावदेवी कोमरपाड़ा भिवंडी ओपन से रहेगा. कल नवा मुकाबला दूसरे और तीसरे मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा ग्रामीण से. 10वां मुकाबला चौथे और 5वें मैच की टीम के बीच में रहेगा ग्रामीण से. कल 11वां मुकाबला एक और कांटे की टक्कर क्लैश ऑफ टाइटंस पायनियर बनाम बंटी स्पोर्ट ओपन भिवंडी से. कल 12वां मुकाबला आगड़ी राजा माहौल और 9वें मैच की विजेता टीम के बीच में ग्रामीण से. आखिरी मुकाबला हंसी का स्पोर्ट और 10वें मैच की विजेता टीम ग्रामीण से. एक और गेंद हवा में, और इसके साथ ही हैट्रिक. लाजवाब गेंदबाजी धीरज द्वारा. पहला हैट्रिक महापौर चषक का, फर्स्ट हैट्रिक क्लेम बाय धीरज. मेयर कप 2021 का ये पहला हैट्रिक धीरज धुमाले के नाम. धीरज धुमाले ने धुमाल कर दी. पहला हैट्रिक, फर्स्ट हैट्रिक क्लेम बाय धीरज. जी हाँ, धुमाले का धमाल और कमाल देखने को मिलता हुआ. तीनों भी बल्लेबाज कैच के रूप में आउट हुए हैं. सबसे पहले प्रतीक बोईर आउट हुए, उसके बाद आतिश पाटिल और अब आतिश भामरे. 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है और हालत खस्ता होती हुई इस रन चेज में 62 रनों का पीछा कर रही है भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम. स्कोर हुआ है 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. देखिए, चैलेंज के इतिहास में कुछ हैट्रिक तो बहुत ही अजीब और बहुत जबरदस्त रहे. खासतौर से एकता मिसाइल प्रशांत मात्रे ने 1999 में जो हैट्रिक लिया था, वो हैट्रिक जो विश्वास मात्रे लकड़ी तोड़ गेंदबाज 4 गेंदों पे 4 बोल्ड. 2011 का पहला हैट्रिक लिया था पप्पू दिवकर ने बीसीसी के, और 2013 में जो बोल्ड का हैट्रिक लिया था शारिफ नाचन ने. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ राजेश आक्रमण पर आते हुए. अनुभवी गेंदबाज है और इनके पास भी अच्छी खासी रफ्तार है. बहुत अच्छा तेज आक्रमण है आई देवी वडुनगर टीम के पास. दोपहर के मैच में सभी बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जामुलपाड़ा टीम को मात दी थी, और इस मैच में भी स्थिति काफी मजबूत है वडुनगर की. 49 रन चाहिए, 18 गेंदें शेष. पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. खेले ना खेले दुविधा में थे बल्लेबाज. 2 नए बल्लेबाज एक क्रीज पर इस समय, वैभव और परेश. एक नए सिरे से पारी की शुरुआत करनी होगी. मेरा अपना मानना था कि टॉस जीत के जो फील्डिंग लेने का फैसला था वो बहुत ही शौक के लिए था. इस बार अच्छा शॉट है, पुल कर दिया है और गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन ने, बैकफुट पे चले गए. ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था वहां पर. चाबुक शॉट जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई मैदान के बाहर. 6 रन. बहुत ही सुंदर ये सिक्सर निकलता हुआ वैभव के बल्ले से. सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है. ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी. चौकों और छक्कों में डील करना होगा बल्लेबाजों को. कंसिस्टेंसी दिखानी होगी बड़े शॉट्स में. 1-2 बड़े शॉट से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से केवल 16 गेंदें शेष है और जीतने के लिए अभी भी 43 रनों की आवश्यकता है. जी हाँ, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया था जरूर, लेकिन उसको सही ठहरा नहीं पाए गेंदबाज.
जब आप 5-5 ओवर का मैच खेलते हो, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं सोच ये होती है कि 40-45 के करीब रोका जाए विपक्षी टीम को। मिस टाइम है ये शॉट, लेकिन फील्डर बहुत दूर, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हरीश, ये बताइए कि अगला टॉस किस टीम ने जीता और क्या फैसला है? रईस बिल्डर एंड डेवलपर और जय भोलेनाथ के बीच जो टॉस हुआ है, कट करने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर का, बचाने की कोशिश की थी विकेट कीपर ने। विकेट कीपर का ये काम रहता है, जैसे गेम्समैनशिप कहते हैं। ये देखिए, हालांकि गेंद हाथ में आई नहीं, लेकिन तुरंत गेंद को अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया था, लेकिन अंपायर बहुत ही प्रोफेशनल अंपायर से इस टूर्नामेंट में। बहुत ही बढ़िया गेंद, उल्टा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन काम तमाम होता हुआ यहाँ पर बैट्समैन परेश का विकेट का पतन। कठिनाइयां काफी बढ़ती हुई भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए। 4 विकेटें गिरी है और केवल स्कोर बोर्ड पे जो रन है वो है 21। ओवर नंबर 3 चल रहा है। देखिए, पिछले मुकाबले में भी हरीश जी ने ये विषय छेड़ा था कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी काफ़ी कारगर साबित होती है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में, और बल्लेबाज जो है वो आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं। विकेटों की तरफ जब गेंद आती है कुछ इस तरह से, और इस तरह के उलझुल शॉट जब खेले जाते हैं, तो बैट्समैन का बचने का बहुत कम चांस होता है। नए बैट्समैन यतीन मडवी बल्लेबाजी को जा रहे हैं। इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है, बाएं हाथ के बैट्समैन है और इस वक्त वो नंबर 6 की पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आए। हालांकि वो ओपन करते हैं। 21 पर 4 इस समय भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड। यहाँ से और 41 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। आवश्यक रन रेट देखिए ज़रा, 17.57 रन प्रति ओवर का हो चुका है, जो पारी की शुरुआत में 12 से थोड़ा ऊपर था। पहले ओवर में 11 रन आए थे, कोई विकेट नहीं गिरा था, लगा था कि ठीक ठाक शुरुआत की है सलामी बल्लेबाजों ने, लेकिन दूसरे ओवर में मोमेंटम गंवाया। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, अच्छी गेंदबाजी। अगला मुकाबला सरोलीपाड़ा वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट इनवाइट रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली बैट फर्स्ट। केवल 13 गेंदें बची है और 41 रन अभी भी चाहिए। गुड लेंथ गेंद थी जिसे आड़े बैट से खेल दिया है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। केवल 1 रन और इसके साथ ही ये ओवर भी समाप्त होता हुआ। तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। बल्लेबाजों ने भी अपना काम बखूबी से निभाया है इस मैच में। वडुनगर टीम के लिए मुकाबला कहीं ना कहीं वडुनगर टीम के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कभी भी पलटवार किया जा सकता है भारत स्पोर्ट्स की ओर से। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 40 रनों की दरकार। बहुत ही हेल्दी आस्किंग रन रेट है 2 ओवर में 40। देखिए, आज के जो मैचेस बचे हैं वो टीमें जो टेलीविजन सेट पे देख रही, यूट्यूब पे देख रही है, ग्राउंड पे देख रही, सभी को रिपोर्ट करना है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर और जय भोलेनाथ के मैच के बाद जो मैच रहेगा गिरामीन से जे हरी राजनौली और गावदेवी अंजूर के बीच में, उसके बाद बीसीसी बोरियोली पड़गा अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में। इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, डीप लॉन्ग के पे गेंद को उठाया 1 रन। और ये जो 2 मैच है इनकी विजेता टीम आज का देर शाम का आखिरी मैच खेलेंगे। अब 11 गेंदे, रन चाहिए 39। शॉट से आपको क्लास झलका होगा यतीन मडवी का। बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है। मैं ताज्जुब है मुझे कि उनको ओपन करने क्यों नहीं भेजा गया था। जी हाँ, हमने देखा टेमघर के जॉय कुमार ट्रॉफी में क्या जबरदस्त शॉट्स खेले थे उन्होंने। इस मरतबा ड्राइव किया है गैप में, बहुत तेज निकल गई गेंद, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। कोशिश जरूर की थी लेकिन रहेगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कड़क शॉट खेला गया था, ताकत का इस्तेमाल किया गया था और टाइमिंग भी लाजवाब थी और साथ में प्लेसमेंट भी। हालांकि फील्डर ने कोशिश बहुत बढ़िया की थी वहां पर। ये देखिए, फुलर लेन गेंद थी ऑन साइड में,
बहुत ही तगड़ा प्रहार, जमीन से चिपकी हुई गेंद वहां पर बायात से रोकना चाहते थे। इस बीच गेंद फिर से खेला है डीप मिड ऑन पे, दूसरे की कॉल और आत्महत्या कर ली वहां पर यतीन मडवी ने। थ्रो बहुत अच्छा आया सीधा स्टंप्स के ऊपर, अंपायर की उंगली आसमान में, यतीन मडवी आउट। दोपहर के मैच में भी मैंने कहा था कि जो वडूनगर का बॉलिंग आक्रमण है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा कठिनाइयां पेश कर सकता है विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए। बहुत दूर थे बल्लेबाज। पूरी तरह से बैकफुट पर इस मैच में भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम। 28 रन मात्र बने हैं, 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। धीरे धीरे भारत स्पोर्ट्स से दिल्ली दूर जा रही है, वैसे भी दूर है और दूर हो रही है। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है। 9 गेंदें शेष है, 34 रन चाहिए। गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज, सामना करेंगे बैट्समैन वैभव। नए खिलाड़ी कस्तूक आए हैं, टीम के कैप्टन। इस मर्तबा जोरदार स्ट्रोक, गेंद सीधी काउ कॉर्नर के ऊपर से जाती हुई 6 रन। भरपूर शॉट, पावर बैक स्ट्रोक, 188वां सिक्सर महापुर चषक का। ऐसे लगा मानो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जो गलतियां की है उसका कहीं ना कहीं सारा गुस्सा जो था वो इस गेंद पर उतार दिया है बैट्समैन कस्तूब ने। तगड़ा प्रहार किया, शक्तिशाली बल्लेबाज है और इसी तरह से खेलते भी है। वैभव के बल्ले से बल्कि ये सिक्सर। वैभव वन मैन आर्मी का रोल अदा कर रहे हैं, 2 सिक्सर 1 चौका लगा चुके हैं, 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज। वैभव को फिर बहुत ही कड़ा ऑन ड्राइव, लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑन पे मौजूद। बहुत ही मीठी आवाज आई थी जब गेंद बल्ले से टकराई थी। अभी भी 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं। कौस्तुभ भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, भले ही वो नंबर 7 पर आए हैं। हालांकि समीकरण काफी कठिन है। 7 गेंदें शेष, 27 रनों की आवश्यकता। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा शॉट आता है तो आखिरी ओवर में रोमांच देखने को मिल सकता है। बढ़िया गेंद बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। 1 ओवर और 27 रन। चैलेंज के क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को अगर मैं खोलता हूं, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के इतिहास के पन्नों को खेलता हूं, तो लेट गोपीनाथ मुंडे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, यहीं आतिश पाटिल जो आउट हुए आखिरी ओवर में, उन्होंने 19 रन लिए थे धनेश कुकसे के सामने। लेकिन चैलेंज के जो मेगा इवेंट है उसमें 20+ रन 3 ही बार बने। सबसे पहले विश्वास मात्रे ने बनाए थे जब उन्होंने एकता मिसाइल के सामने सेमीफाइनल मुकाबला जीता दिया था 2000 में, तो 3 मरतबा ऐसा हुआ है। उसके बाद जगदीश नाइक ने अमर एकता के सामने वो कारनामा अंजाम दिया था, और 2 मरतबा जब सेमी हार गई अमर एकता, तो फिर वो अमर एकता टीम ही चली गई। जी हाँ, उसके बाद शायद उनकी एकता रही ही नहीं। ये हमारा खूबसूरत प्रियांशी स्टूडियो, जहाँ से हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। 35 पर 5 है इस समय स्कोर। 6 गेंदें बची है, 27 रन बनाने हैं। बहुत ही मुश्किल समीकरण है वर्ल्ड टीम के बल्लेबाजों के सामने, और यहाँ पर सन्नाटा रहने ही वाला था क्योंकि जो डिसीजन लिया गया था वो काफ़ी गलत साबित हुआ है कप्तान द्वारा, और रनचेज में बहुत ही खराब हालत हो गई है भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड की। इस बीच बहुत खूबसूरत गेंद। देखिए अब टेलीकास्ट का स्टैंडर्ड देखिए, ट्रिपल एस पे टेलीकास्ट जा रहा है, लेकिन ट्रिपल एस पे अगर आपको हाई डेफिनेशन HD फिनिशिंग में चाहिए तो चैनल 911 को सर्च कीजिएगा। महापुर चषक आपको HD फिनिशिंग में मिलेगा टेलीकास्ट, हाई डेफिनेशन। ओ बढ़िया गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं दिनेश चौगले, क्योंकि इस विकेट का उनको काफी तजर्बा है। चैलेंज के लिए बहुत ज्यादा खेले हैं, और ये देखिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और रफ्तार को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है। सबसे अच्छी बात उनकी लेंथ बहुत अच्छी रही है। दोपहर के मैच में भी, रात में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी कल रात, और इस ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस मरतबा सिर्फ पुश किया वहां पर, ये सोचते हुए कि जीत और हार के फासले को कम किया जाए।
हाँ बिल्कुल, केवल औपचारिकताएं शेष है, 2 डॉट गेंदें खेल चुके थे तो सिंगल लेना मुनासिब समझा वहाँ पर बैट्समैन ने। गति में परिवर्तन किया गया था, हल्के हाथों से चिप किया सामने और सिंगल लिया बैट्समैन ने। इस मरतबा आप पीछे खेल रहे थे। मैंने यही कहा था कि दिनेश चोगले को आपको तो मन की मुराद मिल गई, बिना टॉस जीते आपको बल्लेबाजी दी गई, क्योंकि समय वो था जहां पर भारत स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीत के फील्डिंग ली। कहा जाता है कि हार और जीत का जो फासला होता है वो कभी कभी एक फैसला भी तय कर देता है। एग्जैक्टली दिनेश चोगले और फिर हाथों के पीछे से किया था लेग कटर की कोशिश, अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन पे। देखिए कल बहुत ही रोमांचक मुकाबले हुए, आज 1-2 मैचेस बहुत अच्छे हुए। दर्शक हमेशा चाहते हैं कि कट टू कट मैच रहे, कांटे की टक्कर रहे, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स ना एक तरफा प्यार चाहता है ना एक तरफा हार चाहता है। फिर से लेग कटर, कमाल की बॉलिंग, इस मैच को जीत लिया है आई देवी वडूनगर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन दिनेश एंड ऑल टीम, लाइक प्रशांत एंड ऑल टीम, एंड हार्ड लक आतिश पाटिल, हार्ड लक आतिश बामरे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। देखिए 2 दावेदार, 3 दावेदार हैं मैन ऑफ द मैच के, लेकिन ये हाई स्कोरिंग मुकाबला था और राहुल ने ये मैच को बनाया। 3 सिक्सर लगाए, 9 गेंदों में 21 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है राहुल, और मैन ऑफ द मैच के लिए हम आपको लिए चलते हैं हरीश पंड्या के पास। और हरीश, मैन ऑफ द मैच के बाद आपको प्रियांशी स्टूडियो से जुड़ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे। तो मैं उद्योगपति सम्माननीय नीलेश पाटिल जी, इनसे गुजारिश करूंगा आपके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड अब हम देने जा रहे हैं। राहुलला नम्र विनंती असेल इथे यायचं आहे आणि निलेशजी पाटील आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत। सर या, तुम्हाला उद्योगमध्ये खूप यश मिळावा 2021 मध्ये अशा आमच्या शुभेच्छा आहेत चॅलेंजकडून। आणि हे सामनावीरसाठी जो चेक दिला जातो त्याची प्रतिकृती, महापुरांचं फोटो आहे, त्याच्यावर चॅलेंजचा लोगो आहे आणि 1000 रुपये लिहिलं आहे। आणि त्या व्यतिरिक्त खूप सुंदर ट्रॉफी सामनावीरची आणि 1000 रुपये रोख, जे प्रत्येक सामन्यासाठी आपण देणार आहोत। संघाला लागली विजयाची चाहूल जेव्हा खेळण्यासाठी आला राहुल, तर राहुल हा सामनावीरचा पारितोषिक मिळवताना कसं वाटतंय? सर इथे खेळताना आनंदच वाटतो आणि महापौर चषक खेळण्याचा मान भेटला म्हणून धन्यवाद. आणि ज्या पद्धतीने तुमचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळलाय, म्हणजे अगदी दुपारचा सामना खेळला, संध्याकाळचा सामना खेळला, तुला असं वाटतं की आता तुमचा जो संघ आहे तो तुमचा जो पोटेन्शियल आहे, तुमच्यामध्ये जी क्षमता आहे त्याच्या हिशोबाने 90%, 80%, 85% कितपत तुला वाटतं की तुमच्यामध्ये जी क्षमता आहे त्या क्षमतेवर तुम्ही खेळत आहे? बॉलर तर बॉलिंग चांगलीच टाकतायत, पण आमचे 1-2 बॅट्समन अजून बॅट नाही आहेत, टचमध्ये आले की अजून चांगला परफॉर्मन्स होईल. तर खूप खूप धन्यवाद तुझा आणि अभिनंदन मित्रांनो. हे आहेत राहुल. दोस्तों एक चीज बताता चलूं, जब बहते हुए पसीने से कामयाबी मिलती है, जब बहते हुए पसीने से कामयाबी मिलती है तो उसके सामने सैट वैट जटैक का डीओ भी फेल हो जाता है. तो आपको ये पसीने की मेहनत मुबारक हो. आइए चलते हैं प्रियंशी स्टूडियो. शुक्रिया.